Hi everyone, my name is Ningnei Hokip of ZNV Tuinom Churchanpur, Manipur. Okay, I don't think you would know that. Still then, I'd like to welcome you all to this group of ours, and since this is your first video, live video, so I'd like to request you all to study hard and to support us in the best way you can by working hard and correct this NDST. Okay, now going forward, let's this is your first chapter, life process of biology. I'll be taking a short class on this. I won't go into deep detail about it. Still then, I hope you all paid full attention to it. Okay, now firstly let us learn what is life process, what is meant by life process. Okay, life process means the processes which are sustaining our life. Okay, like digestive, we have this type of digestive processes, and then we have this reproductive, you have your respiration, excretion, circulatory. All these are processes, okay, which are sustaining our life. And then it's because of all these processes occurring simultaneously that we can sustain our life, we can live, we can talk, we can walk extra. Okay, now let's first start with digestion. Okay, now when we talk about digestion, the first thing that comes into our mouth, into our mind, is about nutrition, right? So going further about the nutrition, we have these two types of nutrition. There is first is the autotrophic and the other is heterotrophic. Okay, so when we talk about this autotrophic, obviously what comes in our mind is plants, right? Autotrophic, because plants can synthesize their own food, and that is the definition of autotrophic. Autotrophic are nutrition is the type of nutrition in which a living organism synthesize their own food. That is it. And then, how does plants synthesize their own food? Well, we know that it is because it is through the process of photosynthesis, right? So now the next type of nutrition is heterotrophic nutrition, which includes the living organisms which depends on other living organisms for their food. Okay, they are called this type of nutrition of dependency is called as heterotrophic nutrition. And we have these three types of heterotrophic nutrition, that is saprophytic, parasitic, and holozoic. When we talk about saprophytic, it is about the type of nutrition in which we have the living organism depends on some other dead or decaying organisms. Have you ever wondered why our dead body decomposes or smell after few days or few weeks? It is because unseen microorganisms or certain living organisms are depending on them, consuming them. Hence, they are, in fact, they are actually decomposing the dead and decaying materials. Okay, that type of dependency on dead things are called saprophytic. And when we talk about parasitic, it depends on living thing. That means, example, the lice that stays in human hair, or means animal fur, something like that, those are called as parasitic. Okay, just like the cascata, depending on the hedge, okay, hedge plant, all these are type of parasitic. They depend on the organisms which are still living. That type of nutrition is called as parasitic nutrition. And further on, when we talk about holozoic, the best example will be us human beings, because we consume our food through our mouth. Okay, the organisms which consume their food through their mouth are called as holozoic, are known to execute this holozoic nutrition. Okay, so when we talk about holozoic, then we have these certain processes. First will be ingestion. Ingestion means consuming. The food that we take inside is called ingestion. And then after that, it enters our body and it gets digested. That is called digestion. After that, it gets assimilated. Assimilation means when the food which is being digested inside our body is absorbed by our body and used for its own processes. Any type of process. Okay, it may be for anything. This process is called assimilation process. And further on, going to the next, that is the excretion. After whatever being necessary for us, we already take it, and whatever is being left out, it is being excreted by our body. Okay, that process is called as the excretion. And then now let us go a little deep on the autotrophic nutrition, that is indirectly about
photosynthesis. Okay, well, as we all know, photosynthesis is being exhibited by plants and certain bacteria, cyanobacteria, which is also known as the blue-green algae. Now we know that in photosynthesis, certain raw materials are needed, right? Like the carbon dioxide, water. All these are the raw materials needed. With the presence of light and inside the chloroplast, means indirectly using the chlorophyll, this photosynthesis takes place. Okay, by the process of this photosynthesis, carbon dioxide and water get reacted in a chemical reaction to form the glucose. Okay, and then after this glucose is being formed, we'll go further on to in the respiration part to its further detail. Okay, then let's see let us talk about the alimentary canal. Okay, alimentary canal, which starts with our mouth. Mouth doesn't means sometimes most of us have the misconception that mouth includes our teeth, tongue, and all. No, mouth is just the opening of the exterior part. Okay, and then the cavity which contains are these teeth, tongue, all these things are called as buccal cavity. Okay, and then we have this buccal cavity. After that, we have our pharynx. Okay, inside the pharynx, our pharynx opens into both food pipe and a windpipe. Then now let's talk about the food pipe. There is the esophagus. Okay, afterwards we'll talk about trachea and respiration part. Okay, now when we talk about the esophagus, it is a long pipe which extends till the diaphragm inside our body. Okay, get ready. Just try to imagine it. Just try to feel it. Whatever I'm saying right now. Okay, start with your mouth, and then your buccal cavity, and then your pharynx, which is situated deep in there. After the esophagus, which is going inside your body, and then the esophagus, after it reaches the diaphragm, it opens into a stomach. It is a J shape. Okay, J shape, ABC wala J shape. So it opens into the stomach, and it is being guarded by a sphincter muscle. Okay, called as that sphincter regulated the food which is being passed down from the esophagus to the stomach, and then from stomach it enters the small intestine, that is also being guarded by another sphincter, and then from small intestine it goes to the large intestine and to the anus. That is the whole lining, that is the whole part of alimentary canal. Okay, that we are going to study in detail right now. Well, that is the part, and then now let us go to the glands, okay, which are situated in certain different parts of our alimentary canal. It's because of these glands that our digestion is processed. Without these glands, our digestion would have been impossible, right? So talking about the glands, let us first start with the glands which are present in our mouth. Okay, just try to fill your mouth. It has these salivary glands. Our saliva doesn't come out of nowhere. Okay, it comes out from our salivary glands. Got it? So our mouth has these salivary glands, and these salivary glands can secrete the salivary amylase. What is this salivary amylase? Whenever we say amylase, okay, this amylase is ACE. Just focus on the word ASE at the end, ASE. This is always meant for enzymes. Okay, it indicates the name of an enzyme. That means this salivary and amylase is also an enzyme which acts on starch, that is polysaccharides, and then it helps in their digestion. Okay. So whatever starch that we consume, it is 30% of it is being digested in our mouth itself. Got it? Now when we go a little deeper, that is the esophagus. Esophagus, remember this. Don't forget this. Okay, that our esophagus doesn't have any digestive enzymes. It is free of enzymes. It is just a passage. Okay. After esophagus, we have our stomach. Our stomach, the glands which is present in our stomach is called as the gastric glands. Got it? So in our stomach, gastric glands secrete three things. One is hydrochloric acid, HCl, that we all know, and then this pepsinogen. Okay, pepsinogen, and moreover we have this mucus. Firstly, let's talk about hydrochloric acid. What is the function of hydrochloric acid? When we talk about hydrochloric acid, it gives acidic medium to the stomach. Okay, it means like since it is an acid, obviously it will give acidic medium to the stomach, and notice that our stomach is highly acidic in nature. Okay, and then why is this acidic medium required? Because we have this pepsinogen. Pepsinogen is an inactive form of protein digesting enzyme. Okay, and when this inactive form of pepsinogen is being exposed to hydrochloric acid, then it gets activated to pepsin, and this pepsin helps in the digestion of proteins. Okay, it helps in the digestion of proteins. And then this pepsin is usually present in adults, but in child
we call it as renin, which digests the milk proteins. Okay, the milk proteins that baby consume from her mother. Now we know that our body has this thin lining. Okay, the innermost lining of our this whole alimentary canal is called as the mucosa, which is a thin layer. So we need to protect that from the highly acidic medium of our stomach. So how should we do that? We have this type of cells present in our stomach called as the goblet cells, which secrete this mucus. Okay, it protects the surrounding of the stomach, the lining of the stomach, from the exoceration, means the highly acidic medium of the stomach. Okay, now that's the end of stomach. Now let's go on further to small intestine. Well, our small intestine, it has certain parts which we will be dealing in a little later, and then it रिसीव एंजाइम्स, इट सिक्रेट्स, वो खुद की भी एंजाइम होती है, उसके अलावा बाहर से भी लेते हैं. ठीक है, कहाँ से लेते हैं? लीवर और पेंक्रियास से लेते हैं. लीवर it takes certain what does it take from liver? It takes bile juice. Okay, bile juice. और पेंक्रियास से क्या लेते हैं? एमाइलेज लेते हैं, ट्रिप्सिन लेते हैं और लाइपेसेस लेते हैं. चलो हम बात करते हैं लीवर के बारे में. लीवर से जो बाइल जुइस आते हैं वो किस काम के लिए होते हैं? वो बाइल जुइस जो है वो हमारी जो स्टोमक में जो एसिडिक मीडियम है ना, उसको अल्कलीन बनाना है. स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंचते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें अल्कलीन मीडियम चाहिए, तो उसको अल्कलीन बनाने के लिए ये बाइल जुइस मदद करता है. ठीक है, ये बाइल जुइस सिंस इट इज़ एल्कलिक इन नेचर, alkaline in nature, it will provide alkaline medium. एंड साथ ही साथ वो फैट्स का डाइजेशन में भी मदद करता है. कैसे? फैट जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, वो बड़ा मोलिक्यूल्स होता है. ठीक है, तो उसको वो तोड़ के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में बना लेते हैं, जिसको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा आसान हो जाते हैं. और लाइपेस पता होगा, लाइपेस तो वो फैट्स का डाइजेशन के लिए ही होता है. ठीक है, जब वो छोटा हो जाते हैं तो लाइपेस उसके ऊपर अच्छे से इफिशिएंटली वर्क कर सकता है. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पेंक्रियास के बारे में. जब हम पेंक्रियास से क्या क्या आता है, बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं. उनमें से हम यहाँ पे पढ़ेंगे एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेसेस. ये सब कुछ एमाइलेज जो है हमें पता है ऑब्वियसली स्टार्च के लिए ही होता है, और ट्रिप्सिन ये प्रोटीन के लिए होता है, और लाइपेज जो है वो फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए होता है. तो और ये हुई हमारी बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनल में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है वही है. तो उसके बाद हम बात करेंगे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सरफेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, जो कि हम विलाई बोलते हैं. ठीक है, तो ये विलाई किस काम के लिए होता है? ये विलाई जो है छोटी छोटी चीज़ होता है ना, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है. अगर सरफेस एरिया बढ़ेंगे तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाएगा. अगर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाएगा तो द एफिशिएंसी ऑफ डाइजेशन वुड बी फार मच बेटर देन लेस सरफेस एरिया. ओके, now I guess that is the end of our digestion part. Now let us go on to further. There is respiration. Okay, respiration. Firstly, let us have clear this misconception of ours that most of the people, obviously us, when we were small, we thought that respiration means breathing. This inhalation and exhalation, we thought of just it is like that. No, it is not just that. Okay, it is a part of it, but it's not just that. What I mean to say is that we have these two parts. We can divide in two parts. One is external, one is internal. Okay, now when we talk about this external, it will include the breathing, the mechanical process that we are doing. We inhale, we exhale. Okay, this is called as the external वाला. और internal, अगर हम internal की बात करेंगे तो वो थोड़ा डिटेल में जाएंगे. पहले हम external निपटा लेते हैं. ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, ताकि हम समझ सके कि ये क्या काम करता है. सबसे पहले हमारी नोज में जो ओपनिंग्स होता है वो नोस्ट्रिल होता है. नोस्ट्रिल के अंदर जब हम घुसते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेजल चैम्बर या फिर नेजल कैविटी. ठीक है, तो उसके बाद हम जाएंगे हमारी ट्रैकिया. ये जो ट्रैकिया होता है ना, वही होता है ट्रैकिया. ट्रैकिया क्या होता है? एक पाइप जैसे होता है. ठीक है, और ट्रैकिया के ऊपर जो, अगर मान लो कि ये ट्रैकिया है. ठीक है, अगर मान लो कि अगर ये ट्रैकिया है तो उसके ऊपर जो ओपनिंग पार्ट होता है उसको हम ग्लोटिस बोलते हैं, और इस ग्लोटिस के ऊपर एक कवरिंग आता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस. ठीक है, तो एक ट्रैकिया जो है वो सिलेंडर टाइप का है, और ये कार्टिलेजिनस कैसे बोलेंगे, कार्टिलेजिनस रिंग सराउंड करते हैं, पर पूरा रिंग शेप में नहीं, सिर्फ आगे का पार्ट ही.
आगे का पार्ट इस सी शेप में उसको सराउंड करता है, ठीक है। और ये ट्रैकिया कहाँ तक जाते हैं हमारे शरीर में, तो it goes till the fifth thoracic vertebrae, means like when we count our vertebral column backside, then it ends till the fifth thoracic vertebrae, okay, up till the trachea is there. After that it divides into left and right of bronchi, okay, we have this मान लो कि यहाँ पे ट्रेकिया है तो यहाँ पे ब्रोंकाई में डिवाइड करेंगे, और ये ब्रोंकाई जो है वो फर्दर डिवाइड होकर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, और ये और छोटा ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। एंड देन इट फर्दर गेट डिवाइडेड इनटू द स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट इज alveoli. What is alveoli? Let's little. This is the exchange part. This is the exchange organ of our body. Okay, means in our lungs. It is through this alveoli that exchange of carbon dioxide, oxygen, all this takes place. Got it? Now let's talk about a little about thoracic chamber. पता होगा तुम लोग को thoracic chamber. देखो जब हम thoracic chamber के बारे में बात करते हैं ना, thoracic chamber जो है ये closed chamber होता है, ठीक है, एक पूरा close. ऊपर में आगे में हमारी जो नेकटाई जैसे शेप होता है ना, बोन स्टर्नम, वही होता है, और लेटरल में ये यहाँ पे क्या बोलते हैं रिब्स आ जाते हैं, और नीचे में डायफ्राम उसको कवर करता है, ऊपर में क्लेविकल कवर करता है, तो एक पूरा का पूरा ये क्लोज चैम्बर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लोज चैम्बर जो है उसके अंदर ही हमारा लंग्स प्रेजेंट होता है, और हमारी लंग्स को पूरा सॉलिड नहीं होती, ये थोड़ा स्पॉन्जी होता है, तभी तो हम उसको ऐसे स्क्वीज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना हमारी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में इतना ही होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ा इंटरनल के बारे में, ठीक है। जब हम इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब हमारी सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन चलता है, जो प्रोसेस चलता है, वही होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। ये दो पार्ट्स में बांट सकते हैं हम, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जब हम बात करेंगे तो एरोबिक तो पता होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। और एरोबिक में एरोबिक जो है वो पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, जो कि हम रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यही सही मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बॉडी में होता है ना, वही होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एक प्रोसेस अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और यहाँ पे क्या होता है ज़्यादा एटीपी बन जाते हैं, मतलब कि ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। और यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जो ग्लाइकोलाइसिस में जो फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है ना, वो ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में बनता है, और पायरुविक एसिड जो है वो फर्दर it goes on further processes and finally gets converted to carbon dioxide and water, okay. So this is the whole process that is that occurs in our cell. And then further on, if we go to anaerobic respiration, then in anaerobic respiration we have these two types. One is fermentation takes place, obviously. In yeast, it results in the formation of alcohol, ethanol, and then in our muscles, it results in the formation of lactic acid. ये थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम यीस्ट को बोलेंगे तो वहाँ पे पायरुविक एसिड जो है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ इथानॉल प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। और अगर हम हमारे मसल्स के बारे में बात करेंगे तो हमारी मसल्स में देखो ऑक्सीजन तो होते हैं हम अपने शरीर में, तो पर अगर हम उसको ज़्यादा एक्सरसाइज करने पे या फिर टू मच वर्क होने की वजह से अगर वो पूरा ऑक्सीजन ख़त्म हो गए ना, तो एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाते हैं, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू होते हैं तब जो पायरुविक एसिड जो कार्बन डाइऑक्साइड में बनाना चाहिए ना, वो doesn't convert into carbon dioxide, but it gets converted into this lactic acid, okay. Because of that we have these muscle cramps when we play cricket, football, something like that, all of a sudden, okay. And then let's give a brief difference of this aerobic and anaerobic respiration, okay. Just make columns in your mind. One will be aerobic and one will be anaerobic, okay. In aerobic we have this
oxygen is required, oxygen doesn't require. More energy is produced, less energy produced. End product is carbon dioxide and water, and in here end product is ethanol, that is alcohol, and lactic acid. Okay, and then in here more number of ATP is produced, 36 or 38 depending upon the pathway. And then in here only just few ATPs, 2 ATP is being produced. Okay, so there's a large difference in the production of ATP, because of which we prefer aerobic respiration. Okay, now let us talk about this exchange of gases. Okay, when we talk about this exchange of gases, how do you think our body does this process of exchange of gas? Well, obviously it will through diffusion, because our alveoli are the wall of our alveoli is really thin. Okay, the wall of our alveoli is really thin, and then it is because of this thin diffusion that carbon dioxide can go out from our body and oxygen can come inside our body. Okay, now let us मतलब हम देखते हैं कि डिफ्यूजन के लिए क्या क्या चाहिए होते हैं. अगर हमें डिफ्यूजन करना है तो सबसे पहले हमें सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए. ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, उतना ज़्यादा एक्सचेंज हो पाएगा, तो हमारी रेस्पिरेशन का प्रोसेस उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा, है ना. तो जब हम डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे, मतलब अल्वेलाई के बारे में बात करेंगे, तो उसका जो अल्वेलाई जो होता है ना, छोटा छोटा होता है. जितना साइज़ छोटा होता है ना, उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होता है. मान लो कि एक इतना बड़ा सा बॉल है, और इस बॉल की वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम जो अगर तुमने छोटे छोटे पीसेस में बांटा ना, तो अगर तुम उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे तो छोटे वालों का सरफेस एरिया ऑब्वियसली ज़्यादा होता है. ठीक है, तो इसकी वजह से हम चाहते हैं कि अल्वेलाई छोटा छोटा हो जाए. और नेक्स्ट फैक्टर जो चाहिए होता है वही होता है थिन मेम्ब्रेन. ठीक है, जितना ज़्यादा अल्वेलाई का मेम्ब्रेन थिन होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन हो सकते हैं. तो यही होता है. और एक चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि दिन हो या रात. ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम sunlight is there, so photosynthesis will be there. When photosynthesis is there, then the carbon dioxide which is released by the process of respiration, it is being used in the process of photosynthesis again. Okay, it is being used in the process of photosynthesis again. So it doesn't so during daytime what is being released is only oxygen. But at night time, since there is no release, there is no photosynthesis occurring, what happens is that the carbon dioxide which is being released by the process of respiration, there is no one to use that. In fact, there is no one to release oxygen also, since there is no photosynthesis. Okay, so just make this difference clearly in your mind, that during daytime oxygen is being released, and during night time carbon dioxide is released. Got it? And then now going to the next, let us talk about how blood is being how gas is being exchanged. Obviously it is through blood. Okay, then let us talk a little more about blood. That is, our blood has these two parts. Okay, one is the form elements and one is plasma. Okay, and then when we talk about these form elements, we have these three parts. There is red blood cells, white blood cells, and the platelets. And then in blood, when just separate out all these red blood cells, white blood cells, and the platelets, the remaining part of the blood is called as plasma. Got it? So blood is ब्लड का फंक्शन क्या होता है. ठीक है, ब्लड का फंक्शन होता है कि जो हम अभी रेस्पिरेशन के बाद जो कर रहे थे, जितना भी ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो अपनी बॉडी में जाएंगे और हमारे बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाते हैं वो बाहर निकलेंगे. ठीक है, ये सब जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सब ब्लड ही करता है, वरना अगर ब्लड नहीं होती तो ये रेस्पिरेशन भी पॉसिबल नहीं होती. ठीक है, तो हम थोड़ा ब्लड का फंक्शन इसके बारे में बात करते हैं. आरबीसी और जो प्लाज्मा जो है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आते हैं. जैसे कि हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब का ये ट्रांसपोर्टेशन करता है. साथ ही साथ हमारे न्यूट्रिएंट्स और हमारी ये नाइट्रोजनस वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन यही करता है. ठीक है, और हमारी वाइट ब्लड सेल्स जो है, जैसे कि तुझे सबको पता है कि हमारे वाइट ब्लड सेल जो है वो हमारी इम्यूनिटी के लिए काम करता है, मतलब कि हमें बीमारियों से बचाते हैं. ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस.
And then when we talk about this platelets means its main function is for clotting. When we get injured or wound, within few minutes, then our blood started clotting, right? That is because of the presence of these platelets. Okay, these are the functions of blood. And then now let's talk a little more about the blood vessels. हमारे खून ऐसे शरीर में ऐसे थोड़ी ना बहाते हैं, हमारी तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, जिसके कारण हमारे ब्लड जो है वो वेसल्स के थ्रू ही ऊपर नीचे चले जाते हैं जहाँ पे भी जाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बोलेंगे, मतलब पार्ट्स को ही देखते हैं। सबसे पहले आर्टरीज होता है, उसके बाद वेन्स होता है, उसके बाद कैपिलरीज होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा तो आर्टरीज होता है, उसके बाद वेन्स होता है, उसके बाद वेन्स होता है, उसके बाद कैपिलरीज होता है, ठीक है। तो आर्टरीज जो है बड़ा क्यों होता है? अगर देखो हमारी हार्ट है, हार्ट से जो ब्लड निकलता है ना वो हाई प्रेशर में निकलता है, क्योंकि हार्ट जो है वो बहुत ही हाई प्रेशर से ये ब्लड पंप करता है। तो जिस पाइप से, मान लो कि ये एक पाइप है, ठीक है, जिस पाइप से ब्लड हार्ट, मतलब द पाइप through which blood has to come out from the heart, it has to be strong, right? Otherwise it will break, okay, it will burst, because the pressure of the heart which is pumping the blood is really high, okay. Because of that we want this artery to be thick and then strong, okay. And then after that we have these veins. What are veins? Vein जो है हमारी बॉडी पार्ट से जो ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और आर्टरीज जो है वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, ठीक है। हार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओर्टा के थ्रू आर्टरीज के अंदर मतलब आ जाते हैं, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। पर जब हम वेन्स के बारे में बात करते हैं ना, तो वो हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसके पास कोई प्रेशर नहीं होते, हमारी टिश्यूज़ कोई प्रेशर नहीं देते, तो उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग होने की तो ज़रूरत होती ही नहीं है, तो इसलिए वो छोटा होता है और वो थोड़ा वीक भी होता है, ठीक है। और वो वेना कवा के थ्रू अपनी हार्ट में जाएंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। और कैपिलरीज क्या होता है? कैपिलरीज जो है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। और जो आर्टरीज जो है मान लो कि एक बहुत बड़ा सा है, ठीक है, और उसको मतलब ऐसे स्प्लिट होना होता है, क्योंकि टिश्यूज़ के अंदर, सेल्स के अंदर घुस के जाना होता है ना, तो आर्टरीज जो बड़ा होता है वो नहीं जा पाते, तो उस काम के लिए हमारी कैपिलरी से काम आता है, ठीक है। उसके लिए हमारे कैपिलरी जो है सेल के बीच में जाके जितना भी काम अंदर चल रहा होता है वही निपटाते हैं ये कैपिलरीज, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हार्ट की, ठीक है। अब तुम लोग अपनी इमेजिनेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि अब हमें इमेजिनेशन का टाइम हो चुका है, ठीक है। तो हम हार्ट के बारे में, डबल सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हार्ट के अंदर डबल सर्कुलेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि हम ह्यूमन बींग्स में आते हैं। पहले तो हम बात करते हैं कि जो एम्फीबियंस रेप्टाइल जो होता है ना, वो उसके अंदर सिर्फ 3 चैम्बर हार्ट होता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ये सब मिक्सअप हो जाते हैं, तो वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो जाते हैं। पर हमारा जो है वो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 चैम्बर होता है, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी मिक्स होते ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी 4 चैम्बर हार्ट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले चलो आप अपनी पेपर हो सके तो अपनी ये हार्ट का शेप बना लो, और ऐसे मान लो कि ऐसे है, तो उसको 4 क्वाड्रेंट में बांटते, तो लेफ़्ट और राइट में लिख दीजिए, ठीक है। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो सबसे पहले पल्मोनरी वेन से शुरू करते हैं, जो कि हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप आउट हो जाते हैं वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आते हैं, और कहाँ जाते हैं? वो लेफ़्ट एट्रियम के जाते हैं, ठीक है। पहले ये बताती हूँ कि हमारी हार्ट जो है वो 4 में बांटता है। ऊपर जो दोनों होता है वो एट्रिया होता है, और जो नीचे होता है वो वेंट्रिकल्स होता है, ठीक है। और जो ऊपर एट्रिया, नीचे वेंट्रिकल का जो मसल्स होता है ना वो ज़्यादा थिक होता है, क्योंकि इसको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, और एट्रिया को उतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, तो उसका ये वॉल उतना थिक नहीं रहती, ठीक है। तो वेन हमारी लंग्स से जो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं वो हमारी लेफ़्ट एट्रियम के आते हैं, मतलब कि ये
मेरी लेफ़्ट इधर है तो मैं यही लूँगी। तो अगर इस साइड में ऊपर वाले लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आ जाते हैं हमारी लंग से, ठीक है, हमारी लंग से पल्मोनरी वेन लेके आते हैं हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये लेफ़्ट एट्रियम में अंदर घुसता है और लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। और लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है सिर्फ सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, ठीक है, अभी हम डिऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये ओर्टा के थ्रू अपनी बॉडी में पूरा ये चले जाते हैं, इट गोज टू ऑल पार्ट्स, ऑल वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू दिस ओर्टा, ओके, मीन्स इट आवर ओर्टा व्हिच इज एन आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम आवर हार्ट टू आवर बॉडी, ठीक है, पता है, समझ में आया। तो इसलिए आर्टरीज ठीक होता है, तभी तो बोले अभी। चलो अब बॉडीज़ ने, अब हमारे टिश्यूज जो सेल्स होता है उसने अपनी अपनी लाइफ प्रोसेसेस किया और वहाँ से हमने ऑक्सीजन ख़त्म हो जाते हैं। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड ऑक्सीजन कैरी करके आते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं पर जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में रहता है उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, ठीक है। तो जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं, समझ में है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं वो हमारी बॉडी में डिफ्यूज़ हो जाती है, उसको दे देते हैं और अपनी बॉडी उसको ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं रिटर्न में। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी वेस्ट है, अपनी बॉडी की वेस्ट है, तो इसको हमें निकालना है ना अपनी बॉडी से। तो ये वेन जो है उसको फिर से कलेक्ट करता है और वो आके हमारी वेना कवा, सुना होगा, वेना कवा के थ्रू आते। अब मैंने लेफ़्ट जितना भी लेफ़्ट की बातें हैं वो ख़त्म हो गई, ठीक है। अब हम राइट एट्रियम में आएंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हम राइट एट्रियम में आएंगे। राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में जाएंगे, ठीक है। राइट वेंट्रिकल के बाद हमारी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू अब अपनी लंग्स के पास जाएंगे, क्योंकि लंग्स ही तो जब लंग्स पहुंच जाते हैं अपनी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये लंग्स जो है वो अपनी ब्लड में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकाल देते हैं, ठीक है, अपनी अल्वियोलाई के थ्रू, तभी तो हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है। ये सब प्रोसेस बस एक ही फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में होता है, ऐसे सांस लिया ऐसे निकाल दिया, पर अपनी बॉडी के अंदर इतना ही प्रोसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइकिल तो क्लियर हुई ना, पहले पल्मोनरी वेन से लेफ़्ट एट्रियम में आए, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल से ओर्टा के थ्रू, ओर्टा से अपनी बॉडी से वेन्स के थ्रू, वेना कवा से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, उसके बाद लंग्स में फिर से जाता है और वही साइकिल फिर से हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे तुमने नोटिस किया होगा, यहाँ पे कोई क्या मिक्सचर नहीं होती ना ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की, तभी तो हम बोलते हैं इसको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। Got it? So that is the whole process of double circulation. Okay. Now let us talk about the plants and transportation in plants. Okay, till now we have been talking about animals, right? Now let's talk about plants. In plants, transportation of food and water takes place through the vascular bundles. Vascular bundles include the xylem and the phloem, right? Xylem and phloem. Xylem is mainly meant for transportation of water and minerals, and phloem is mainly meant for transportation of food. And for your information, now we know that how does this transportation takes place? It takes place by two processes. Okay, one is by root pressure and one is by transpiration. What is root pressure? देखो ये root pressure जो है वो concentration gradient के basis पे ही आ जाते हैं, ठीक है। कैसे concentration gradient क्या होता है? अगर हमने एक यहाँ पे एक चैम्बर बनाया जिसके बीच में अगर हमने कुछ मेम्ब्रेन डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, यहाँ पे कम कंसंट्रेशन है, यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, यहाँ पे कम कंसंट्रेशन है। ज़्यादा कंसंट्रेशन का मतलब पानी कम होता है ना, और कम कंसंट्रेशन का मतलब पानी ज़्यादा होता है। तो पानी कहाँ से कहाँ जाएंगे? इधर से इधर जाएंगे ना, जहाँ पे पानी ज़्यादा है या फिर कंसंट्रेशन कम है, वहाँ से इधर इसके अंदर जाएंगे ना, यही तो श्योर होगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू ही वही जाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि रूट प्रेशर क्या होता है। देखो कैसे बनेंगे कि हमारी सोइल में न्यूट्रिएंट्स और पानी दोनों होता है, और रूट्स में भी पानी और सोइल दोनों होता है, राइट। तो जब हमारी रूट जो है सोइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है, जब सोइल से न्यूट्रिएंट लेते हैं तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होता है, जिसके कारण कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है,
अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो पानी का अमाउंट कम होगा ना बाहर के कंपैरिजन से, तो बाहर से पानी अंदर आ जाएंगे, तो उसकी वजह से एक प्रेशर आ जाता है। उसके जो प्रेशर है उस प्रेशर की वजह से पानी जो होता है ना वो पुश अप हो जाता है, ठीक है। जैसे पुश अप होता है तो प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यही एक तरीका है, पर ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ छोटे छोटे प्लांट्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है, बड़े प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। तो अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ये बड़े लंबे लंबे ट्रीज जो है उसके लिए काम आता है। तो अगर ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूसेस वाटर बाय इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। लीफ में जब स्तम्भता खुल जाते हैं तो वहाँ से पानी वाटर वेपर के फॉर्म में निकल जाती है, क्योंकि लीफ के अंदर जो वाटर होता है ना उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और बाहर में जो कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से उसका टेंडेंसी होता है कि अंदर से बाहर जाने की, ठीक है। तो इसकी वजह से इतना तो समझ में आया होगा। तो हम तो देखो अब लीफ को पता चल गया कि उससे पानी निकल चुकी है, तो उसको तो किसी से लेना होगा ना, तो इसलिए अपनी मतलब अपनी प्लांट बॉडी से जाइलम के थ्रू पानी खींचते रहते, ठीक है, खींचते उसका जो खिंचाव का पावर जो है इतना ज़्यादा होता है ना कि इतनी लंबी ट्री जो है उसकी रूट तक जाके पानी निकाल देते हैं, ठीक है। और ऐसे कंटिन्यूसली वो निकालते रहते, क्योंकि बाहर से जो चले जाते हैं वो नीचे से निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ट्रांसपिरेशन ही एक और बेहतर प्रोसेस होता है प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। तो अगर हम फ्लेम के बारे में बात करेंगे तो फ्लेम जो है वो क्या करते हैं, ये फूड का ये करते हैं, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। तो ये एक बात याद रखना कि फ्लेम जो है वो जाइलम जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि पानी तो ऊपर से थोड़ी ना नीचे आते हैं, वो हमेशा नीचे से ऊपर आते हैं, ठीक है। उसकी वजह से हम उसको यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। पर जब हम फूड के मतलब फ्लेम के बारे में बात करते हैं तो वो बाई डायरेक्शनल या फिर मल्टी डायरेक्शनल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्लांट जो है अगर एक बड़ा सा ट्री है तो इधर से लीफ में भी तो फूड बनाएंगे, यहाँ की लीफ भी तो फूड बनाएंगे, तो इधर का फूड जो है इधर भी जा सकते हैं, इधर का फूड भी इधर जा सकते हैं, तो दोनों मतलब हर तरफ से आते हैं, ठीक है। जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि बाई डायरेक्शनल या फिर मल्टी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो लास्ट में हम बात करेंगे कि एक्सक्रीशन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो जब हम एक्सक्रीशन के बारे में बात करते हैं तब एक्सक्रीशन के लिए हमारे ऑर्गन्स क्या क्या ज़रूरी होता है। सबसे पहले किडनीज, उसके बाद यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं किडनीज के बारे में। तो किडनीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो किडनी जो है हमारी बैक साइड में ना पीछे में रहती है, नीचे एब्डोमेन के नीचे आती है हमारी किडनीज, और पीछे वो बीन शेप होता है, बीन शेप तो पता होगा ना, राजमा, उसके शेप में आती है, ठीक है, किडनीज। और उसके बाद किडनीज के अंदर आते हैं दो पार्ट, ठीक है, एक जो है ग्लोमेरुलस और एक जो है ट्यूबुल्स, और ट्यूबुल्स के अंदर भी एक मतलब कि रेनल ट्यूबुल्स के अंदर आते हैं बोमेन्स कैप्सूल और साथ ही साथ ट्यूबुल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो हम आगे बात करेंगे तो ग्लोमेरुलस क्या होता है। देखो पहले हम बोमेन्स कैप्सूल को बात करेंगे। बोमेन्स कैप्सूल जो है ऐसे ठीक है कप शेप होता है जिसके अंदर यहाँ पे ग्लोमेरुलस आते हैं, ऐसे कोयल होके वो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलस होता क्या है आखिर, ये ग्लोमेरुलस जो है वो कैपिलरीज होता है, आर्टरीज, ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड मतलब हमारी ब्लड जो लेके आते हैं, तभी तो ब्लड ही तो फिल्टर करना है किडनी, तो ये ग्लोमेरुलस से ही ब्लड आती है और ब्लड से ये फिल्ट्रेशन इसके थ्रू ही हो जाते हैं, बोमेन्स कैप्सूल के थ्रू। अगर यहाँ पे ये बोमेन्स कैप्सूल है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस है, इसके नीचे ही सारा ट्यूबुल्स इसके अंदर ही सारा ट्यूबुल्स आ जाते हैं, ठीक है। ट्यूबुल्स में क्या क्या आते हैं, पहले टीसीटी आते हैं, उसके बाद हेनली स्लूप आते हैं, उसके बाद डीसीटी आते हैं, जो कि तुम क्लास 11 में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो कि अगर हम बात करेंगे तो इसके फंक्शन के बारे में, इसका फंक्शन तो पता होगा, किडनी का फंक्शन तो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और ये एंड प्रोडक्ट क्या होता है, हमारी यूरिन है ना। तो हमारी ट्यूबुल जो है
जो ट्यूबल्स होता है ना जो हमारी, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एब्जॉर्प्शन के लिए, रीएब्जॉर्प्शन के लिए काम आते हैं. कैसे? क्योंकि हमारे जब फिल्ट्रेट होता है ना हमारी ब्लड, तो वहाँ से भी जितना भी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होता है इट एब्जॉर्ब इट बैक. Got it? Then moving on to the next, we have these ureters. Okay. Now the urine which is being filtered out from the kidney, got it? The urine which is being filtered out from the kidney, it passes through the ureters, which is the pipeline. Okay, and it gets stored in a urinary bladder. It gets stored in urinary bladder. Okay, till it is filled. When it is filled, it comes out through the urethra, and that is called our urine. Okay. और यहीं पे एक स्पेशल केस आता है जो है डायलाइसिस. ठीक है, डायलाइसिस क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस, dialysis is a process for excretion for those people whose kidney fail, for those kidney failure patients. Okay, and then these kidney failure patient, we take out an artery from them. उसके अंदर से एक artery निकालते हैं, and then through which blood is being literally taken out. Okay, and then it is being filtered through a machine. The machine, after filtering the blood, it is being transported again into the human body, because it's his or her kidney doesn't work anymore, so we need something who can filter it, right? So this is the process, this is the treatment given to those kidney failure patients. Okay, now let us talk the last topic, that is excretion in plants. Even plants excrete things. You may not believe, but even photosynthesis and respiration are also a type of process of excretion. Why? Because in photosynthesis, oxygen is being released out. This is also a type of excretion. And then in respiration, carbon dioxide is being released out. This is also a type of excretion. And then when we talk about transpiration, it also releases water in form of water vapor. So all these are also a type of respiration. Okay. And I think that is the end of our chapter, life process. Okay. Then I hope you all study well. I really am grateful to be part of this group, and then I humbly request you all to give your best, and I'll always have the privilege to be with you all. Thank you.